Jai Hind guys, my name is Ashwarya Upadhyay and I'm from the city of Indore. I happen to stand in front of you by clearing the Central Armed Police Forces examination conducted by UPSC and securing an All India rank 29. Before this, I have also happened to clear the CDS examination, Combined Defence Services, again conducted by the UPSC, and happened to get an All India rank 41. I could not join the armed forces, that's Army, Navy, Air Force, because of a medical condition. But here I am securing an All India rank 29 in the CAPF and soon joining the Central Armed Police Forces as an assistant commandant. I stand here in front of you to talk about the basic strategies that you can use while preparing for these examinations. I've also given the NDA examination before my graduation started, so I'm sure candidates who are appearing for the NDA could also benefit from these strategies. The overall approach remains similar for all three examinations, but for CDS and CAPF specifically, I could give you certain, I wouldn't say hacks, but certain tips and tricks which can help you streamline your preparation very well. So to start off, I got a dividing line and tell you how is it different between these two examinations, right? Now CDS, once you clear the CDS written examination, you'll have to go through the SSB, which is a Service Selection Board interview, which happens, which goes on for 5 days. Of course, all of you know it. Then it is followed by the medicals, and then you find your name in the merit list. Whereas in the CAPF, you give the examination, therein after which you have to go for the physical and medical rounds. If you clear those, you have to go for the UPSC interview. उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में चयन हो सकता है. ये डिफरेंस है बेसिक अप्रोचेस में. Now understand, CDS is for Army, Navy and Air Force, right? तो इसमें there are 3 papers. One is for English, one is for GS, and another is for Maths, right? There are basic cutoffs for each of the subjects, so you have to make sure you get a minimum marks in each of them. While you have to get a 20% in GS, you can score very well in a subject like English and in a subject like mathematics if you have had a maths background in your school or in your graduation. The basic strategy that I followed was, I realized कि मेरे को एक basic threshold cross करना है GS में, क्योंकि मेरे को सारे questions अटेम्प्ट नहीं करने क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, which is a problem. तो मैंने GS में बेसिक सब्जेक्ट जो थे जो मेरे को लगा काफी स्ट्रांग हो सकते हैं एंड जिनको CDS के एग्जामिनेशन में वेटेज काफी ज्यादा दिया जाता है, उन पे ज्यादा फोकस किया. फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री काफी ज्यादा फोकस रहता है वो. एंड आई केप्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बैठ जाते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में, बीट CDS, बीट CAPF, बीट NDA. I also focused on other areas like sports, awards, क्योंकि these are one-liner questions, तो इससे बहुत easy होता है कि अगर आपने basic facts पढ़े हैं कि पिछले 1 साल में क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड गलती से मान लो वही फैक्ट आ गया पेपर में, तो आपके लिए easy होगा वो मार्क करना. So CDS में I emphasize very much on English and mathematics. The reason being, GS से आपका cut off निकलेगा, GS से आपका पेपर clear होगा, so that you can go for the SSB. You have to get a minimum threshold marks, right? But in English and mathematics, you can score as much as you want, क्योंकि उसमें scope काफी होता है. English का syllabus थोड़ा majorly defined ही रहता है. Prepositions आते हैं, basic paraphrasing वाले questions आते हैं, vocabulary आती है, idioms, phrases आते हैं. So it's very easy for you to figure out कि अच्छा ये मेरा subset है, इनको मेरे को target करना है. For this, I would recommend you check out the 5 previous questions of the past 5 years of the CDS. Previous 5 years अगर आप देखते हो तो आपको उससे हर साल 2 बार होता है CDS का पेपर. So you will get 12 question papers of each of them, right? You have 12 subsets of what UPSC can ask in this examination. English के लिए आप शुरू करोगे and you figure out कि कौन-कौन से sections में आपको easy हो रहा है, कौन-कौन से sections में difficult हो रहा है. For example, मेरे लिए prepositions बहुत easy था, articles बहुत easy थे, idioms and phrases मैंने बहुत बड़ा लिस्ट बना के रखा था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो बहुत इजी था. इंग्लिश में अगर आप स्कोर अच्छा करते हो तो आपको मेरिट लिस्ट में आने में बहुत आसानी होगी. I still remember I had attempted around 110 questions or I think 115 questions during my attempt. So English will get you to the merit list, so will maths. Maths अगर आपका बैकग्राउंड रहा है, so you have to make sure you keep practicing maths every day. I'll get to the particular hours that you can give. But maths is again going to help you get to the merit list.
जीएस में आपको इतना ही रिस्क लेना है जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो. हाउ विल यू फिगर दिस आउट कि कितना रिस्क लेना है? यू हैव टू सिट विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज आई जस्ट मेंशन्ड हियर. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बैठो, गिव देम एज अ प्रॉपर एग्जाम. फर्स्ट आवर आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होता है ओरिजिनल एग्जामिनेशन डे पे. पहला पेपर इंग्लिश का लेके बैठो, 1 घंटे बाद सेकंड पेपर जीएस का लेके बैठो, 1 घंटे बाद वापस मैथ्स का लेके बैठो. फॉलो दिस पैटर्न, गिव दिस एग्जाम, गिव दिस मॉक एज यू गिविंग एन एग्जाम. फिर एनालाइज करो कि अच्छा कहां राइट हुआ, कहां रॉन्ग हुआ. फर्स्ट चीज यू हैव टू सी कि सबका इंडिविजुअल कट ऑफ निकल रहा है कि नहीं, कि मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, स्पेशली जीएस का. एंड देन टोटल मार्क्स जितने आ रहे हैं उसके बाद ये देखो कि वो उस साल के कट ऑफ से मैच हो रहा है कि नहीं. फॉर एग्जांपल 2018 में मान लो कट ऑफ रहा है 120, तो इन तीनों का मिला के 120 के ऊपर मेरा जा रहा है कि नहीं. तो ये रियलाइज कि आपका स्टैंडर्ड कहाँ है, आप वो बेंचमार्क में आ पा रहे हो कि नहीं. उसके साथ ये भी होगा कि आपको समझ में आएगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक बैठ रहा है. जैसे मेरे केस में मैथ्स था, सो मैंने मैथ्स को हर दिन एक्स्ट्रा 1 घंटा दिया, राइट, ताकि मैं अल्टीमेट डे पे आई कुड अटेम्प्ट अराउंड 50 क्वेश्चंस. आई एम श्योर देयर आर पीपल हु हैव अटेम्प्टेड मोर देन दैट. पीपल एक्चुअली अटेम्प्ट अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस बिकॉज़ उनका मैथ्स इतना तगड़ा रहता है. मेरा वो वीक था, बट आई रियलाइज मेरे को मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है मैथ्स में, मैं वो करने वाला हूँ. जीएस में थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, कर जाऊंगा. English is the subject which is going to give me more and more marks. So I focused heavily on English. Now I will talk to you about the divisions you can give to each subject. You can divide your day into 3 segments. शुरू वाला दिन मान लो सुबह 6-7 बजे भी उठते हो, तो you can start your day off with maybe English because English सबसे पहला पेपर होने वाला है. सुबह के 3-4 घंटा आप इंग्लिश में दो, ठीक है. देन ब्रेक लो, लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, जो करना है करो. देन यू डू जीएस. जीएस इज द सेकंड पेपर, राइट. सो जो जीएस का पेपर होता है सीडीएस के एग्जामिनेशन के डे पे, उस टाइम लाइन पे आप एवरी डे जीएस पढ़ो, राइट. देन गिव योरसेल्फ अ ब्रेक ऑफ एन आवर एंड देन गो फॉर मैथ्स. मैथ्स इज द लास्ट पेपर ऑफ दैट डे. कैंडिडेट गेट्स टायर्ड, 2 एग्जाम्स आप 2 पेपर्स देके आ रहे हो, उस दिन आप थकने वाले हो मैथ्स के जस्ट पहले, ठीक है. सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ रिचार्ज्ड एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मैथ्स काफी अच्छा जाए. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू in your daily schedule you make sure you study maths and you do maths के problems during the time period of 2 to 4, क्योंकि उस समय पेपर होता है 2 to 4 या 3 to 5 whatever the timings are, उस समय मैथ्स का पेपर होता है. तो मेक श्योर दैट आपका ऐसा साइकोलॉजी पहले से प्रिपेयर्ड रहे एग्जाम के दिन के लिए, बिकॉज आपको बेसिकली 6 घंटे का एग्जाम देना है उस दिन, 2-2 घंटे का एक. तो आपको शुरू से यू हैव टू हैव दैट प्रैक्टिस. जैसे सुबह इंग्लिश का होने वाला है, फिर जीएस का होने वाला है, फिर मैथ्स का होने वाला है. Every day keep following this. Every day keep following this pattern. And after you're done doing maths, sit and see कौन सा वाला सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि वीक बैठ रहा है आपका. कौन सा, फॉर एग्जाम्पल जीएस में आई कुड टारगेट मे बी मोर ऑफ ज्योग्राफी, आई कुड टारगेट मोर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसके क्वेश्चंस ज्यादातर आ रहे हैं अभी. तो आई कैन रात को मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा जीएस को दे सकता हूँ. रात को आई कैन सॉल्व अनदर मैथ्स के कुछ फ्यू प्रॉब्लम्स एंड जस्ट बिफोर स्लीपिंग आई कैन चेक आउट अ फ्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड आई कैन वर्क ऑन माय वोकैबुलरी फॉर अ बिट. So this is the way you can go about it. You know your strengths and weaknesses. सबकी strategy अलग-अलग होंगे. I understand and I respect that. But try to make sure कि आपका ये psychology पहले से बैठ जाए कि अच्छा सुबह English, then GS, then Maths. And I'm not saying this. आप ये Monday to Friday में भी कर सकते हो. Saturday, Sunday, give yourself enough time to focus on that one subject which you think is really creating a problem for you. कि उसमें मेरे को marks आ ही नहीं रहे. तो उसको लेके आप बैठ सकते हो, अच्छे से सैटरडे संडे फोकस कर सकते हो. एंड अगेन मंडे से लेके यू कैन फॉलो द सेम पैटर्न. सो ये बात हो गई सीडीएस की. इफ आई टॉक अबाउट सीएपीएफ, देयर आर 2 पेपर्स. दिस इज पेपर 1, दिस इज पेपर 2, राइट. पेपर 1 इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर, पेपर 2 इज अ सब्जेक्टिव पेपर. नाउ ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए if you see the syllabus, it is sort of a mix of all the papers of CDS. क्योंकि इसमें पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में जीएस आता है, मैथ्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है. बट प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम बहुत कम मिलता है आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिकॉज टाइम सिर्फ 2 घंटे का होता है एंड क्वेश्चन अराउंड 120 होते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस देख पाओ, सारे क्वेश्चंस आप एटलीस्ट देख पाओ कि हाँ ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. इसके लिए आपको मॉक्स इसके काफी ज्यादा देने पड़ेंगे. बट बिफोर मॉक्स आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, those should be your base, those should be your fundamental. You have to see if you can do the previous year questions or not. That will make you understand your basic benchmark कि अच्छा where am I standing, मैं जो previous year questions आए उससे नीचे हूँ कि उसके ऊपर हूँ.
So for CAPF paper 1, pick out the easy sections. Logical reasoning हो गया, maths हो गया, basic GS के questions हो गए, polity हो गया, geography हो गया. But I think the major focus should be given to science. Science एक ऐसा चीज है, physics, chemistry, bio, जो आपको काफी मार्क्स फेच कर सकता है एंड इसका स्टैंडर्ड एनसीईआरटी लेवल का होता है. व्हाट हैपेंस इज हम ग्रेजुएशन करके आते हैं, हम चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, हमें याद नहीं रहती ये चीजें. बट सीएपीएफ एग्जामिनेशन में अगर प्रीवियस क्वेश्चन की ट्रेंड्स देखोगे तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस से, एंड इट कैन इजीली फेच यू 30 to 35 क्वेश्चंस एंड दैट इज अ गेम चेंजर, राइट? सो मेक श्योर यू गिव अ लिटिल मोर एम्फेसिस ऑन द साइंस पार्ट बिकॉज इट इज वेरी स्कोरिंग, इट इज वेरी इजी. बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं. ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मेक श्योर यू हैव इट ऑन योर फिंगर टिप्स. देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी कोटेड फ्रॉम द बुक directly in the examination, so do that. Besides that, I think you'll be fine in the paper 1. Try attempting as many as you can. इसमें try maximizing your score. I'll tell you why, because finally in the merit list अगर rank 1 का score कुछ होता है तो rank 50 का score में डिफरेंस कुछ ज्यादा ही नहीं रहता, बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस रहता है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेपर 1 में ट्राई मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर. ये आपको पता कैसे चला कि स्कोर मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? बाय गिविंग मॉक्स, बाय गिविंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. व्हेन यू अंडरस्टैंड कि कौन से सब्जेक्ट्स में रिस्क लेना है. पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बढ़िया. हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, मत करो. सो वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी. बिकॉज मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता सकता हूँ कि पॉलिटी के सारे कर लो, ज्योग्राफी के सारे कर लो, बट दैट्स नॉट द केस विद एवरीवन. एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सो यू हैव टू फिगर दैट आउट बाय डूइंग मॉक्स, बाय गिविंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. बात होती है सब्जेक्टिव पेपर की, तो इसमें ऐसे प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के क्वेश्चंस ये काफी ज्यादा होते हैं. द मेन गेम इन पेपर 2 इज योर पेपर शुड गेट कंप्लीटेड ऑन टाइम. 3 घंटे मिलते हैं, हमें लगता है कि 4 एसेज लिखते हैं तो हर एक ऐसे आई शुड राइट इट लाइक शेक्सपियर. ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज एग्जाम प्रेशर में वो नहीं होता. जितना भी आपके दिमाग में कंटेंट रहेगा, जितना भी आप पढ़ के जाओगे, वो आपको उस टाइम लिमिट में खत्म करना है. And that is a game changer. If you do not finish your paper 2, it is very difficult for you to crack the written stage. ठीक है? तो इसके लिए you have to keep practicing. आपको दिन में आप whenever you prepare paper, उसके एटलीस्ट 1-2 महीने पहले से you have to keep practicing paper 2. You know, maybe time yourself कि okay, I have to write an essay, I have to finish a précis, I have to do a comprehension. Give आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, तो give priority to which section आपका कौन सा strong है, कौन सा weak है. For example, essay 20 मार्क्स का एक ऐसा आता है तो 80 मार्क्स निकाल सकते हो आप इससे. तो मे बी लाइक मेरे स्ट्रैटेजी के टाइम पे आई स्टार्टेड विद द एसे आफ्टर फिनिशिंग द इंग्लिश पार्ट व्हिच इज 25 मार्क्स. आई विल कम टू दैट लेटर. आई मेजरली स्टार्टेड विद द एसे क्योंकि मेरे को पता है मैक्सिमम फेचिंग मार्क्स इसी से आ सकता है. तो मान लो 20 मार्क्स का एक रहता है एसे, दिस इज इनटू 4, दैट इज गिविंग यू 80 मार्क्स. ठीक है, मेरे को मान लो हर एक ऐसे में अगर लेट्स बी लिबरल विद माय सेल्फ, मेरे को 10 मार्क्स भी मिलते हैं. So that is, and if I multiply into 4, I'm getting a 40. And imagine अगर मेरा एक ऐसे भी छूटता है इसमें, so that is directly a -10, that is 30. Imagine अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता because of just this essay, क्योंकि मेरा 10 मार्क कम हो गया because I missed out on an essay. Imagine that. So you have to make sure that you finish the paper. ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव वाले पेपर में ये यही आता है कि स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू फिनिश इट बिकॉज दे थिंक कि एक ऐसे में ज्यादा जोर डाल देते हैं, ये मेरा टॉपिक मुझे पता है, इसमें कम जोर डालेंगे बिकॉज मेरे को टॉपिक नहीं पता है. दैट शुड नॉट बी द वे. यू हैव टू अप्रोच इट लाइक वन सिंगल पेपर. सो फॉर दैट आई वुड से, फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द इंग्लिश पार्ट. जो लास्ट में 25 क्वेश्चन रहते हैं वो काफी ईजी होते हैं, प्रीपोजिशंस वाले, आर्टिकल वाले, वो. देन आई वेंट ऑन टू द एसे. उसके बाद आई कुड पिक आउट द कॉम्प्रिहेंशन. मैं आपको अपना ऑर्डर बता रहा हूं बेस्ड ऑन माय फिजिबिलिटी कि अच्छा इन चीजों को मैं फटाफट कर सकता हूं. देन आई वेंट ऑन टू द प्रेसी. आई एम मिसिंग आउट अनदर सेक्शन बट लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. दिस कुड बी इन योर ओन मैनर, बट इस तरीके से यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन में कितना वेटेज है एंड आप किस हिसाब से इसको प्लान कर सकते हो. So you have to sit with yourself, give mocks, give previous year questions to understand your own strengths and weaknesses. ठीक है, ये बात हो गई CAPF पेपर की. ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, इंग्लिश GS CDS की बात हो गई. इसमें जनरल ओवरव्यू आई वुड से कि एक सोर्स को एटलीस्ट मेक श्योर आप 10 बार करो rather than doing 10 sources once. ठीक है, क्योंकि इन एग्जाम्स का गेम इज रिविजन.
अल्टीमेट गेम वही, जैसे कि स्पेशली CAPF में ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, यू विल फिगर समथिंग आउट। सब्जेक्टिव में क्या करोगे? यू हैव टू मेक श्योर दैट द कंटेंट इज सुपर इम्बाइब्ड इन योर ओन हेड, कि जब क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाए। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया तो मैं डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। I can relate it to the condition that India is facing. I can relate it to the condition that the Scandinavian countries has, which is at its best, development at its best. So I have these many dimensions already cropping in my head. जैसे मैंने डेवलपमेंट वर्ड सुना, वैसे ही आपको ये कंटेंट बार बार रिवाइज करके अपने नोट्स को कॉम्प्रीहेंड करके यू हैव टू कीप इट वेरी रेडी एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मेक श्योर जो भी टॉपिक आप पकड़ो, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी उठा रहे हो, सो बी वेरी गुड एट पॉलिटी। अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हो तो बी वेरी गुड एट हिस्ट्री। डोंट लेट इट कोई स्टोन अनटोन मत छोड़ो उस चीज में, क्योंकि आपका रिविजन नहीं है। रिविजन पे ज्यादा फोकस करो रादर देन गोइंग फॉर टू मेनी सोर्सेज, बिकॉज देयर इज नो एंड टू सोर्सेज, वो तो कभी खत्म होगा नहीं, ठीक है। एंड आई वुड से in the objective papers here and here, try maximizing your score by taking a few risks. Try understanding कि आपका optimum number of attempts क्या है। काफी टाइम बच्चे ये भी करते हैं कि अटेम्प्ट 60 तक करते हैं, बट दे थिंक यार 10 क्वेश्चन और नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। बट हु नोज 10 क्वेश्चन में आपका नेट स्कोर कि मान लो 5 सही हो गए तो 5 into 2 is 10, और 5 गलत भी हो गए तो मतलब आपका नेगेटिव बहुत कम रहेगा उसमें, तो आप नेट स्कोर आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा, राइट। सो यू टू मेक श्योर कि आप इतने मॉक्स प्रैक्टिस करो एंड इतनी बार इन चीजों के बार बार करो ताकि यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप मॉक्स कर करके ही सीख पाओगे, फाइनल के लिए वो नहीं छोड़ सकते हो, राइट। सो ये हो गई बेसिक स्ट्रैटेजी अपने CDS के लिए, CAPF के लिए। CAPF का आई गिव एन ओवरव्यू। ऑब्जेक्टिव ट्राई मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर, सब्जेक्टिव मेक श्योर यू फिनिश योर पेपर नो मैटर व्हाट हैपेंस, टाइम योरसेल्फ। CDS में GS का एक थ्रेशोल्ड होता है, उसको क्रॉस करना है सिर्फ। English and maths is going to make you to the merit list. Special focus on English. Questions are easy. You can practice them, and I think it will help you get a very good rank in the final merit list. ये बात हो गई CDS and CAPF की strategies की. Thank you.